So welcome class 12. Yes. Today we are going to deal with the new topic, that is the types of the budget. Okay, in which we have to study about the two different types of budget. Okay, we have to study about two different types of budget, that is the revenue budget. Okay, first and second is the capital budget. Okay, what is revenue budget and what is capital budget? Later on we will discuss, but first of all we will see that in revenue budget what we have to see. In revenue budget we will deal with the revenue receipts, and revenue expenditure, and in capital budget we will deal with the capital receipts and capital expenditure. Okay, so in the previous video we have discussed about the budget, its objective. Okay, why the budget is being prepared and what are the different objectives of the budget. So in this video, okay, in the today's video we have to discuss four different types of budgets. Okay, that is the revenue budget. Means in revenue budget we have to discuss about the revenue receipts and revenue expenditure, and in capital budget we have to discuss about the capital receipts and capital expenditure. Today I will make it clear that how you will recognize that the revenue receipts, revenue expenditure, capital receipts and capital expenditure. Okay, let me tell you, revenue receipts is that receipts which neither creates any liability nor reduces any assets of the government. Okay, while revenue expenditure are those expenditure, I tell you, first of all you have to link these revenue receipts with the capital receipts. Means what is the capital receipts? Which either creates any liability or reduces any assets of the government. Okay, what is revenue expenditure? Revenue expenditure which either creates which neither creates any assets nor reduces any liability of the government. Okay, while capital expenditure means which either creates any assets or reduces any liability of the government. चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं फटाफट कि आपका रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है. ठीक है, सबसे पहला है रेवेन्यू रिसीट्स. आपको दो कंडीशंस दिए गए हैं यहाँ पे. कंडीशंस क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी, ओके, एंड व्हिच नॉट रिड्यूसेस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसा कौन सा
ऐसा कौन सा आपको रिसिप्ट होगा गवर्नमेंट का, ठीक है, जिसमें ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और न ही गवर्नमेंट का कोई एसेट कम होता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, इसका एग्जांपल होगा टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। व्हाई सर टैक्स रेवेन्यू? टैक्स रेवेन्यू is that type of revenue of the government which neither creates any liability nor reduces any asset of the government, ठीक है। अगर हम टैक्सेस गवर्नमेंट को देते हैं तो गवर्नमेंट का वो जो टैक्स होता है वो रेवेन्यू रिसीप्ट होता है गवर्नमेंट का, उस पर गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी भी नहीं बनती है और गवर्नमेंट का कोई एसेट भी कम नहीं होता है। अब इस टैक्स रेवेन्यू में दो तरह के होते हैं टैक्सेस, एक डायरेक्ट टैक्स होगा और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होगा। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? Direct tax are those taxes whose incidence and burden lie on the same person, okay, like the income tax. While the indirect taxes are those taxes whose incidence and burden do not lie on the same person, like the GST. दूसरा differentiation, okay. Direct tax cannot be transferable, it cannot be avoided. While the indirect tax can be transferable and it can be avoided, okay. For example GST, हम ज़रूरी नहीं है कि ऐसे गुड्स को खरीदें जिस पे टैक्स लगते हो, हम अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे गुड्स को भी खरीद सकते हैं जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता है, जैसे कि आपके खादी क्लॉथ्स, वी कैन परचेज द खादी क्लॉथ्स ऑन विच देयर इज नो टैक्स, ओके। सो ये आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीप्ट है, ठीक है। दूसरी तरफ कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच आइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी और रिड्यूसेस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। इसका एग्जांपल होगा बोरोइंग, ठीक है। ऐसे रिसीट्स गवर्नमेंट के जो या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करते हैं या तो गवर्नमेंट के कोई एसेट को कम करते हैं, ठीक है। आपने किसी से बोरोइंग कर लिया, ठीक है, बोरोइंग आपका इंटरनल सोर्स से हो सकता है और एक्सटर्नल सोर्स से भी हो सकता है। इंटरनल सोर्स का मतलब कि अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन से, अपने RBI से, किसी स्टेट गवर्नमेंट से पैसा उधार लेते हैं तो आपका इंटरनल सोर्स है। एक्सटर्नल सोर्स यानी किसी दूसरी कंट्री से, बाहरी कंट्री से पैसा उधार लेते हैं तो आपका एक्सटर्नल सोर्स है। तो पहला इसका एग्जाम्पल बोरोइंग है। दूसरा रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन। अगर हमें किसी स्टेट्स को, ठीक है, मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर उसने स्टेट्स को किसी मान लीजिए कि यूपी को किसी दूसरे स्टेट यानी कि सपोज करिए कि उड़ीसा को उसने पैसे उधार दे रखे हैं, अगर वो रिकवरी करता है तो वो भी इसी फील्ड में आएगा, ठीक है। इसके बाद अदर एसेट्स में आ जाएगा आपका डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स, ठीक है। व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेलिंग of the shares of the government which is being held in the public sector enterprises or undertakings to the private sector, that is called as the disinvestment। यानी कि अगर किसी किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का शेयर, सपोज करिए कि आपने SBI का शेयर किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका डिसइन्वेस्टमेंट, ओके। इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो आपका जो डिसइन्वेस्टमेंट है क्या करता है? डिसइन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स को कम करता है, गवर्नमेंट के एसेट्स को कम करता है। स्मॉल सेविंग यानी कि पोस्ट ऑफिस में आपने जो सेविंग दे रखा है, ठीक है, भारत सरकार को, वो भी सेविंग क्या है, एक तरह से बोरोइंग के रूप में है और इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है। जैसे कि आपने स्मॉल सेविंग के रूप में सपोज करिए कि आपने NSC खरीद रखा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, किसान विकास पत्र खरीद रखा है, यानी गवर्नमेंट को आपने एक तरह से लोन दे रखा है, ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है। गवर्नमेंट की रिसीप्ट तो बढ़ेगा स्मॉल सेविंग में, लेकिन गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी क्रिएट होगी, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होगा? गवर्नमेंट का एसेट कम होगा। रिकवरी ऑफ लोन में क्या होगा? गवर्नमेंट का एसेट कम होगा। बोरोइंग्स में क्या होगा? गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी। तो इन सब सिचुएशंस में अगर
रिसीट्स होता है तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स, ओके, व्हिच आइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी और रिड्यूसेस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए अब हम एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। तो पहला है इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो न तो कोई एसेट बनाता है और न ही किसी पुरानी लायबिलिटी को खत्म करता है गवर्नमेंट का। ठीक है, जैसे कि ये आपका जो एक्सपेंडिचर है ये रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर होता है जो हर एक गवर्नमेंट को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए करना पड़ता है। हर एक गवर्नमेंट को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए करना पड़ता है क्योंकि रिकरिंग नेचर का होता है, जैसे कि सैलरी का पेमेंट करना, पेंशन देना, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट करना, ये सब का सब एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। इसके बिना गवर्नमेंट नहीं चल सकता है। तो ये आपका कैसा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो फॉर एग्जांपल में लिख लेंगे यहाँ पे, एग्जांपल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, पेंशन schemes, interest payment, all these are the example of revenue expenditure. And the last is the capital expenditure. Capital expenditure is that type of expenditure which either creates any assets or reduces any liability of the government. ठीक है, कहने का मतलब है कि ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट का या तो कोई एसेट क्रिएट करता है या तो फिर गवर्नमेंट का कोई पुरानी लायबिलिटी को खत्म करता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि मेट्रो, सरकार ने मेट्रो बनवा दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन करा दिया, ठीक है, इसमें एसेट्स बने, उसका लाइफ टाइम तक इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट ने कोई पुरानी लायबिलिटी को चुकता कर दिया, जैसे कि उसने आरबीआई से पैसा उधार लिया था, उसको आरबीआई को दे दिया। आपने देखा होगा बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले साल 1,76,000 करोड़ का उधार पैसा आरबीआई से लिया था। अब सपोज करो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस 1,76,000 करोड़ को आरबीआई को वापस कर देती है, देन इट इज़ अ टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। या किसी बाहरी कंट्री से पैसा लिया, सपोज करो कि डॉलर ले रखा है अमेरिका से, अमेरिका को दे दिया, ठीक है, या फिर जितने तरह की भी पेमेंट्स की गई है वो सब का सब लायबिलिटी आपका कम करता है। दूसरी तरफ अगर हम मेट्रो लगवाते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन कराते हैं, पाइपलाइन बिछाते हैं, ठीक है, तो इन सब सिचुएशन से क्या होगा, हमारा एसेट क्रिएट होगा जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, एसेट बढ़ेगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ कैपिटल expenditure. So I hope you have understood the types of the budget, and I think you will be easily able to understand that what is the revenue receipts, revenue expenditure, capital receipts and capital expenditure. If you have any problem, just comment and share with me. Thanks.